Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will solve our next reading comprehension. We are going to use all the skills that we learned before, जैसे कि skimming, scanning, previewing, and speed reading, मेन आइडिया को समझना, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ ये पूरा एक्सरसाइज करेंगे। तो अपना पेन पेपर जो कुछ भी आप रखते हैं जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तब साथ में रख लीजिए और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसे कोई टाइटल नहीं है, डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे प्रीव्यूइंग से। ओके, सो प्रीव्यूइंग मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ेंगे केयरफुली। द आर्ट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट is iconic and easily recognizable, marked by its adherence to specific conventions, symbols, and conveyed meaning beyond mere aesthetics. तो हम यहाँ पर एंशंट इजिप्शियन आर्ट की बात कर रहे हैं कि कैसे वो रिकॉग्नाइजेबल है, क्या क्या उसके मेन सिंबल्स है। ओके, तो अब क्विकली स्पीड रीड करेंगे क्योंकि हमको मेन आइडिया तो समझ आ गया इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का कि इसमें हम इजिप्शियन एंशंट इजिप्शियन आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो चलिए, इजिप्शियन प्राइमरी रिलीजियस, पॉलिटिकल, टूम्स, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, डीटीज एंड डिसीज्ड, तो इन सबको दर्शाता है बेसिकली ये आर्ट। इट बेसिकली फोकसेस ऑन पॉलिटिक्स, टूम्स, temples, monuments, deities and deceased, right? Belief, afterlife, beyond death, creating artwork that preserve the memory and essence of individuals, meticulous human figure according to set of stylized forms, heads in profile of torsos, facing forward, legs apart. This approach idealized timeless quality that their art was meant to embody, right? So ये सारी चीजें हमने पढ़ी, लेकिन लास्ट सेंटेंस पढ़ा नहीं है। सो लेट्स रीड द लास्ट सेंटेंस केयरफुली। फर्स्ट पढ़ा, बाकी स्पीड रीड किया, अब लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे केयरफुली, right? Egyptian artists were meticulous in rendering the human figure according to a set of stylized forms, heads in profile of torsos, heads in profile, torsos facing forward, legs apart, as this approach symbolized the idealized, timeless quality that their art was meant to embody. तो इनके आर्ट में एक टाइमलेसनेस था, एक क्वालिटी थी टाइमलेसनेस की। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं क्विकली। Over time, Egyptian art and culture came into contact with other civilizations, most notably the Greeks, whose artistic traditions were markedly different. Okay, ग्रीक आर्ट, अब हम बात कर रहे हैं ग्रीक आर्ट की और ये भी बात करें कि इजिप्शियन आर्ट और ग्रीक आर्ट कैसे अलग है। फोकस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, इमोशंस, ब्यूटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म, नेचुरलिस्टिक मैनर, रिजिड कन्वेंशंस। इन कॉन्ट्रास्ट, हाँ ये इन कॉन्ट्रास्ट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे मिस मत करना। इन कॉन्ट्रास्ट टू रिजिड कन्वेंशंस ऑफ इजिप्शियन आर्ट, idealized forms to increasingly realistic art evolved from idealized forms to increasingly realistic depictions of human body, reflecting an intellectual shift towards humanisms. For the Greeks, art was a pursuit of beauty and perfection, a way to explore the physical and emotional aspects of human life. तो ये ह्यूमन लाइफ बेसिकली जो जैसा है उसका उसकी ओर ज्यादा इनका झुकाव है। नेक्स्ट, इजिप्शियन एंड ग्रीक, अब दोनों आर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं वापस यहाँ पर। आर डाइवर्स इन देयर पोर्ट्रेयल ऑफ डिविनिटी एज वेल, अलग तरीके से पोर्ट्रे करते थे डिविनिटी को। ऑफन हाइब्रिड फॉर्म्स, पार्ट ह्यूमन पार्ट एनिमल, otherworldly power. Greek gods were depicted physically perfect humans. कैसे? Physically perfect humans. Greeks sought to humanize their gods, approachable and relatable figures. Egyptian art remained focused on eternity and divine order, began to explore human potential, individualism. ये वाला पढ़ लेते हैं sentence. Thus, where Egyptian art remained focused on eternity and divine order,
Greek art began to explore human potential, individualism, and the transient nature of life. तो ये इवॉल्व हुआ आर्ट, हालांकि इजिप्ट जो है वो वैसा का वैसा रहा, इट डिड नॉट चेंज मच। राइट, अब लास्ट पैराग्राफ है, इसको भी क्विकली पढ़ लेते हैं। The differences in these two artistic traditions reflect broader philosophical distinctions. Saw life, grand cyclic process. Death was merely a gateway to an eternal afterlife. Reflected, focusing on continuity of life and the eternal nature of the soul. On the other hand, rational inquiry and human experience. Their respective art. ये last sentence पढ़ लेते हैं। The difference is visible in their respective art. Egyptian art is timeless and symbolic, while Greek art is dynamic and emotionally resonant, embodying a cultural fascination with the immediate tangible world. ओके, तो ये हमने पूरा प्रिव्यू कर लिया ये पर्टिकुलर पैसेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं ये पूरा प्रिव्यू करने के बाद जो हमको एक स्ट्रक्चर समझ में आया है, मेन आइडिया समझ में आया है, उसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा इस पर्टिकुलर पैसेज में। हम यहाँ पर दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक है ग्रीक आर्ट और एक है इजिप्शियन आर्ट। उनके डिफरेंसेस के बारे में बात की गई है, किस तरीके से ग्रीक आर्ट इवॉल्व हुआ, इजिप्शियन आर्ट किस तरीके से अभी भी उन्हीं सारे नॉर्म्स को मानता है और वही सारी चीज़ें फॉलो करता है, ये सब हमने डिस्कस किया। और उसके बाद कई छोटी-छोटी चीज़ें डिस्कस की जो हमको उन दोनों आर्ट फॉर्म्स के डिफरेंसेस के बारे में पक्के तौर पे बताती है, राइट? तो ये एक मेन चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि इजिप्शियन आर्ट जो है वो आफ्टर लाइफ के बारे में बात करता है, टाइमलेसनेस के बारे में बात करता है, और ग्रीक आर्ट जो है वो ह्यूमन्स को दर्शाता है, ह्यूमनिज्म पर बिलीव करता है, और उनके जो भगवान होते हैं, जो ग्रीक लोगों के भगवान होते हैं, दैट इज बेसिकली ह्यूमंस एट देयर पीक और परफेक्शन, राइट? सो ह्यूमन फॉर्म को परफेक्ट तौर पर दर्शाते हैं उनके भगवान, राइट? सो ये है मेन डिफरेंस, इसको ध्यान रखिएगा। इसी को देखते हुए हम अब आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द अडियरेंस टू कन्वेंशंस इन इजिप्शियन आर्ट प्राइमरीली सर्व टू। यहाँ पर कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं हम, इजिप्शियन, किस चीज की? इजिप्शियन आर्ट की। प्राइमरीली सर्व टू क्या है मेन आइडिया, क्या कन्वेंशंस है मेनली इजिप्शियन आर्ट के, वो हमको देखना है। ensure a ensure a uniform style across all artistic works, create a sense of continuity and timelessness, make Egyptian art recognizable in other cultures, allow artists more creative freedom in expression। आर्टिस्ट को यहाँ पर कोई क्रिएटिव फ्रीडम वैसा देखा जाए तो नहीं है। मेनली हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये आर्ट फॉर्म जो है वो एक साइक्लिक चीज पर बिलीव करता है कि बर्थ है, बर्थ के बाद होता है सारा जो हम हमारी लाइफ जीते हैं, डेथ है, डेथ डेथ के बाद वापस बर्थ है, और इस साइकिल को एक तरीके से वो बिलीव करता है। तो ये टाइमलेसनेस, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं हम, कंटिन्यूअस है ये, इट इज डेथ इज नॉट एन एंड, राइट? इसको दर्शाता है। तो क्या हम बात कर रहे हैं किसी यूनिफॉर्म स्टाइल की ऑल अक्रॉस दिस वर्ल्ड और आर्टिस्टिक वर्क्स की? नहीं, दैट इज नॉट अ मेन थिंग। ऑफ कोर्स उनके कन्वेंशंस है, बट अडियरेंस टू कन्वेंशंस हम यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, कि कन्वेंशंस को अडियर करके जो इजिप्शियन आर्ट प्राइमरीली जिस चीज, मतलब पर्पस क्या है उनके कन्वेंशंस का, किस चीज को वो सर्व करता है, उनका मेन आइडिया क्या है, उसी के बारे में बात किया गया है, राइट? तो यूनिफॉर्म स्टाइल रखने के लिए क्या ये सब चीजें की गई है? तो ऐसा नहीं है, दिस कैन नॉट बी योर ऑप्शन। क्रिएट अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड टाइमलेसनेस, यस, वो आफ्टर लाइफ की बात करते हैं, लाइफ के बाद में भी लाइफ है उसकी बात करते हैं, और टाइमलेसनेस की बात करते हैं। तो ये आंसर पक्के तौर पे हो सकता है।
मेक इजिप्शियन आर्ट रिकॉग्नाइजेबल इन अदर कल्चर्स, इसके लिए उन्होंने कोई कन्वेंशन नहीं रखे हैं। उन्होंने कन्वेंशंस रखे हैं ताकि हम ये दर्शा सके देखने वाले को कि हाउ अवर लाइफ इज टाइमलेस, राइट। अलाउ आर्टिस्ट मोर क्रिएटिव फ्रीडम इन एक्सप्रेशन, उनको क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है। जहां हम बात करें कि उनका के कन्वेंशंस है पक्के, तो वहां क्रिएटिव फ्रीडम कहाँ हुआ, राइट। सो वी डोंट हैव एनी creative freedom here. Next is, according to the passage, Greek art differed from Egyptian art in its, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की, ग्रीक आर्ट और इजिप्शियन आर्ट किस तरीके से ये दो चीजें अलग है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ग्रीक आर्ट डिफर्ड फ्रॉम इजिप्शियन आर्ट, तो ऑप्शन लिखते हैं चलिए। डिपिक्शन ऑफ गॉड्स एज आइडियलाइज्ड ह्यूमंस रादर देन सिंबॉलिक हाइब्रिड्स। हाँ, ग्रीक आर्ट में क्या किया गया है, गॉड्स को एक आइडियलाइज्ड ह्यूमन माना गया है, आइडियलाइज्ड ह्यूमन के बतौर दिखाया गया है रादर देन सिंबॉलिक हाइब्रिड्स, मतलब एनिमल और एनिमल हाफ ह्यूमन, ऐसे से ज्यादा दिखाया गया है आइडियल ह्यूमंस, राइट। फोकस ऑन अचीविंग, अब ये हो सकता है हमारा आंसर, बट वी डोंट नो until unless we see all the options. Focus on achieving a realistic portrayal of daily life. Not really. We are not interested. No art, neither Greek nor Egyptians are interested in that. Emphasis on architectural grandeur over personal sculptures. नहीं, ऐसी कहीं पर भी बात नहीं है। Reliance on mythological rather than historical subjects, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो यहाँ क्लियर विनर कौन सा है? A, first one, depiction of gods as idealized humans rather than symbolic hybrids is the winner here, right? This is the main difference between Greek art and Egyptian art. Okay, solve करते हैं next question. देखिए हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ प्रिव्यू किया, हमको मेन आइडिया समझ में आ गया और उसके बलबूते पर हम पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमको रेफर भी नहीं करना पड़ रहा है। तो ऐसे भी पैसेजेस आपको आ सकते हैं जहां पर आपने प्रीव्यू किया और उस प्रीव्यू के बेसिस पर ही आप पता लगा लेंगे कि आपके आंसर्स क्या है। बट वो प्रीव्यूइंग स्ट्रांग होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो कीप दैट इन माइंड। ओके, थर्ड इज दिस, द कॉन्ट्रास्ट इन पोर्ट्रेयल ऑफ deities इन इजिप्शियन एंड ग्रीक आर्ट रिफ्लेक्ट्स, राइट। अ पोर्ट्रेयल ऑफ deities में जो विरोधाभास है, जो अलग अलग है, जो कॉन्ट्रास्ट है, इजिप्शियन में हमने क्या पढ़ा था, इजिप्शियन में एक कन्वेंशन है, डीटीज को एक तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन ग्रीक में क्या किया गया है, ह्यूमंस के आइडियलाइज्ड फॉर्म को गॉड की तरह पोर्ट्रे किया गया है, राइट। So, what does it reflect? Let's understand. What does it reflect? Now, this is a very internal kind of question. इसका आपको कहीं पर वहाँ आंसर मिले ना मिले पैसेज में, we don't know. But रिव्यू करने के बाद में ये मेन आइडिया का थोड़ा सा आइडिया आपको आ जाना चाहिए कि ये जो अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ इट, व्हाट इज द क्रक्स बिहाइंड दिस डिफरेंस, राइट। ये समझ आना चाहिए। तो पढ़ते हैं चलिए ऑप्शंस। अ डिफरेंस इन आर्टिस्टिक टेक्निक्स बिटवीन टू कल्चर्स, आर्टिस्टिक टेक्निक बेस नहीं है इसका, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इन अवर पैसेज, so this clearly is not our answer. The Egyptian desire to humanize their gods, similar to the Greeks. अच्छा, इजिप्शियंस ह्यूमनाइज तो नहीं कर रहे हैं, राइट, सिमिलर टू ग्रीक्स, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं रिफ्लेक्ट करता है इनके आर्ट के बीच का डिफरेंस, राइट। ग्रीक वैल्यूज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड रिलेटेबिलिटी, यस, ग्रीक वैल्यूज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये हो सकता है क्योंकि ग्रीक ने जरूर ये हुआ है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है और उसको ज्यादा रिलेटेबल बनाने की कोशिश की है, राइट, उनके भगवान के पोर्ट्रेल को। और ये हम ने एक पार्ट में कहीं देखा भी, हम रेफर करेंगे अभी उसको। इजिप्शियन आर्ट्स फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड इमोशन, बिल्कुल भी नहीं, इजिप्शियन आर्ट इस पे नहीं फोकस करता है। इनफैक्ट इजिप्शियन आर्ट फोकस करता है टाइमलेसनेस पे, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इवन आफ्टर लाइफ, राइट। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं रेफर करके कि ग्रीक वैल्यूज ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड रिलेटेबिलिटी। ह्यूमन एक्सपीरियंस रिलेटेबिलिटी ये वर्ड कहीं आपको दिखता है तो आप
तुरंत उस पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं है क्या। टाइमलेस क्वालिटी, आफ्टर लाइफ, फिगर, स्टाइलाइज। स्कैन कीजिए इस वर्ड को। कौन से वर्ड को? रिलेटेबिलिटी। नहीं, हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली इजिप्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो नहीं है। ग्रीक की जहाँ बात कर रहे हैं वहां पर ऐसा हमको मिल सकता है। या इनटू कॉन्टैक्ट विद अदर, ग्रीक आर फोकस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर दिया गया है एंड इमोशंस, एंड इट सेलिब्रेटेड द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म इन नेचुरलिस्टिक मैनर। rigid convention, humanism, beauty, perfection, physical, emotional aspect of human life, right? तो यहाँ तो हम ये समझ गए कि हाँ, ह्यूमन इमोशंस को यहाँ पर दिया गया है इम्पोर्टेंस। फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रीक वैल्यूज ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, राइट? एक्सपीरियंस, फ्रॉम एक्सपीरियंस कम इमोशंस, राइट? फ्रॉम एक्सपीरियंस कम्स ह्यूमन importance to human emotions in a way. Yeah, we are talking about that here. And relatability, let's say if we are talking about relatability anywhere. Physically perfect. Greek art, we can explore human potential, individualism, and transient nature of life. Aspect of human, physical and emotional aspects of human life. कहीं ना कहीं हम ये बात कर रहे हैं। देखिए ह्यूमन एक्सपीरियंस की भी यहाँ पर क्लियरली बात की गई है। ग्रीक फिलोसॉफी ऑन द अदर हैंड इंक्रीजिंगली एम्फेसाइज रैशनल इंक्वायरी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। समझ गए आप? इसके बारे में बात की गई है। ग्रीक आर्ट डायनेमिक, इमोशनली रेजोनेंट, इमीडिएट एंड टैंजिबल वर्ड। सो कंटिन्यूअसली हम बात कर रहे हैं कि कैसे ह्यूमन इमोशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है, कैसे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंस दिया गया है, कैसे ह्यूमन से उसको कहीं ना कहीं रिलेटेबल बनाया गया है, राइट? तो इसीलिए हमने ये वाला ऑप्शन चुना। ओके, यू मे नॉट गेट द वर्ड्स डायरेक्टली, बट जो उसके आसपास के सिनोनिमस वर्ड्स है ना, उसमें से भी आपको मीनिंग ड्रॉ करते आना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि इस पैसेज में मेनली है कि आप उसके पूरे क्रक्स को समझकर किस तरह के ऐसे आंसर ढूंढ पाते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू द एग्जैक्ट sentence or exact word, you have to refer to the context, you have to refer to the deeper meaning, you have to refer to the मेन आइडिया ऑफ इट। ओके, चलिए ये भी आंसर हमें मिला। इसका कहीं ना कहीं सिनोनिमस, बट या प्रूफ हमको वहां पर मिला। ग्रीक वैल्यूज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड रिलेटेबिलिटी, ये रिफ्लेक्ट करता है वो कॉन्ट्रास्ट जो है ना इन दो आर्ट फॉर्म्स में, इजिप्शियन और ग्रीक, वो ये रिफ्लेक्ट करता है, राइट? नेक्स्ट इज फोर्थ, the main philosophical distinction between Egyptian and Greek art, as mentioned in the passage, is मेन जो फिलोसॉफिकल डिफरेंस है इजिप्शियन और ग्रीक आर्ट का। इजिप्शियन जो है वो ट्रांजिएंट नेचर का है, वो टाइमलेसनेस की बात करता है, और ग्रीक आर्ट जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, ह्यूमन पोटेंशियल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, राइट? तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। Egyptian art is more focused on the afterlife, while Greek art emphasizes realism. Realism मतलब realistic, जो अभी है, जो जैसा है वैसा, उसके आगे पीछे का कुछ नहीं। Greek art celebrates the physical world, while Egyptian art embodies religious continuity. Greek philosophy prioritized religious beliefs. नहीं, ये तो उल्टा बता रहे हैं। इजिप्शियन फिलोसॉफी फेवर्ड रैशनल इंक्वायरी, नहीं ये उल्टा है, राइट? सो ये तो पक्का आंसर नहीं है। इन दोनों में से हो सकता है कोई एक आंसर। इजिप्शियन एंड ग्रीक आर्ट बोथ इक्वली सेलिब्रेट इंडिविजुअलिज्म, जी बिल्कुल नहीं, ये तो अलग अलग है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ग्रीक आर्ट सेलिब्रेट्स द फिजिकल वर्ल्ड while Egyptian art embodies religious continuity. हाँ बिल्कुल, फिजिकल वर्ड की बात की गई है ग्रीक इसमें, और परफेक्ट फिजिकली परफेक्ट स्टेचर वाले जो मतलब उनकी जो मूर्तियां कह लीजिए या उनका आर्ट फॉर्म है, इट काइंड ऑफ रिवर्स, इट काइंड ऑफ लव्स ह्यूमन फॉर्म, फिजिकल फॉर्म एट इट्स बेस्ट। तो फिजिकल वर्ल्ड को कहीं ना कहीं ग्रीक आर्ट सेलिब्रेट जरूर करता है इस मायने से, राइट?
और इजिप्शियन आर्ट जो है वो एम्बॉडीज रिलीजियस कंटिन्यूटी. अगेन देर इज नो, डेथ इज नॉट अ फुल स्टॉप. यू कंटिन्यू टू लिव इवन आफ्टर योर डेथ. इट इज जस्ट अ कॉमा यू कैन से, राइट, अकॉर्डिंग टू इजिप्शियंस. तो हाँ, इसकी तो बात की गई है, लेकिन सिमिलर ऑप्शन यहाँ है. इजिप्शियन आर्ट इज मोर फोकस्ड ऑन द आफ्टर लाइफ वाइल ग्रीक आर्ट एम्फेसाइजेस रियलिज्म. अब देखिए ये करेक्ट है या ये करेक्ट है. वैसे देखेंगे ना तो ये दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. लेकिन ज्यादा कौन सा करेक्ट है? ये वाला, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं आर्ट सेलिब्रेट्स द फिजिकल वर्ल्ड. क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से फिजिकल फॉर्म के परफेक्शन को बहुत इम्पोर्टेंस है ग्रीक आर्ट में, तो उसकी बात की जा रही है बी में. और ग्रीक आर्ट एम्फेसाइजेस ऑन रियलिज्म, रियलिज्म से भी ज्यादा ह्यूमन पोटेंशियल क्या है उस पे भी बात करते हैं. ह्यूमन परफेक्ट फॉर्म में कैसा होगा उस पे भी बात करते. दैट इज नॉट रियलिस्टिक, दैट इज आइडियलिस्टिक, राइट. सो कहीं ना कहीं ये रियलिज्म वर्ड के कारण हम ऑप्शन नंबर 2 को ज्यादा प्रेफर करेंगे. ये होगा हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड और बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. द मेन पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज टू explore the symbolic meanings behind Egyptian and Greek art. Symbolic meanings की तो नहीं बात हुई है. Compare and contrast the artistic philosophies of Egypt and Greece. Okay, this might be our answer. Explain the techniques used in ancient Egyptian and Greek art. Techniques की कहीं बात नहीं कर रहे हैं. Discuss the influence of Greek art on Egyptian culture. जी नहीं, इसकी बात नहीं की है, इसकी भी बात नहीं की है. हाँ, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट हम जरूर कर रहे हैं, इसकी बात तो हम कर रहे हैं. एक्सप्लोर सिंबॉलिक मीनिंग की भी कहीं बात नहीं की है. तो हमारा अगेन बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है. So guys, we have finished reading sixth reading comprehension, and stay tuned because we are coming up with more reading comprehensions. और अलग अलग तरीके के, सिर्फ मेन आइडिया वाले नहीं, तो और भी अलग तरीके के जहाँ पे आपको प्रूफ भी मिलेगा, टेक्सचुअल प्रूफ ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा स्किम स्कैन भी करना पड़ेगा. ऐसे भी पैसेजेस हम लेकर आएंगे. सो स्टे ट्यून्ड and keep practicing. See you in the next video.